بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے اپنے گندے ہاتھوں اور گندے لباس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دکان پر اس قدر رش تھا کہ میں گوشت بنانے میں بری طرح مصروف تھا۔ مرغی کا گوشت ویسے ہی لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اسی لیے میرے برابر میں جو دکان گائے کے گوشت کی تھی اس پر اتنا رش نہیں ہوتا، جبکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا کیونکہ اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایسے میں دکان کے بند کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی دکان بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی میری دکان پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کا دوپٹہ پہن رکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ رات کے اندھیرے میں چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں، گہری سبز آنکھیں جو مجھ پر ٹکائے مجھ سے گوشت طلب کر رہی تھی۔ لیکن اس کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگی، مجھے صرف مرغی کے دل اور پنجے چاہیے۔ پنجے عموماً کوئی خریدتا نہیں تھا اور دل میں بھی تو گوشت میں تول کر نہیں دیتا تھا، اسی لیے میں نے وہ سارے شاپر میں جمع کیے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ جو غریب لوگ ہوتے عموماً وہی اس قسم کا گوشت خریدتے ہیں۔ وہ لڑکی پیسے دینے لگی تو میں نے صاف انکار کر دیا، حالانکہ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ہری آنکھوں نے میرا دل ہی لوٹ لیا ہو۔ جب اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں تو خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار نقاب پوش سے کہوں کہ وہ اپنا چہرہ تو دکھا دے، لیکن پنجے اور دل لے کر وہ تیزی سے اندھیری گلیوں کی طرف جانے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر دکان بند کر کے گھر کی راہ لی، لیکن ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس سنسان سڑک کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس درخت کے پیچھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی۔ چاند کی چمکتی روشنی میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس کی موٹی سی چوٹی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی، لیکن حیران رہ گیا کہ اس ویران راستے پر یہ نوجوان لڑکی کیا کر رہی ہے۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ میری آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں حیران نہ ہوتا اگر جو اس کی سبز آنکھیں میرے سامنے نہ آتی۔ ان آنکھوں کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے یہی تو میری دکان پر آئی تھی، اور اب یہ سبز آنکھوں والی لڑکی یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ ایسے بھاگی جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ میں بھی اسے پیش کی خطرے سے بچانے کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آوازیں لگا رہا تھا، دیکھو آگے مت جاؤ، یہ جنگل بہت خوفناک ہے۔ لیکن وہ میری آواز سنے بنا جانے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ میں شدید حیران پریشان تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ میرا نام عدنان ہے، میرا باپ ایک قصاب تھا، میں نے بھی انہی کا پیشہ اپنا لیا۔ اب ابا جو ریڑھ کی ہڈی کے درد کے باعث دکان پر نہیں بیٹھتے تھے، اب میں ہی ان کی دکان سنبھالتا۔ ہم مرغیوں کا کاروبار کرتے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ دونوں بہنیں کالج، جبکہ ایک چھوٹی بہن اسکول میں پڑھتی تھی۔ ویسے تو گھر میں خوشحالی تھی، لیکن ایک خواب جو اماں ابا کی آنکھوں میں سجا تھا وہ تھا اپنے گھر کا خواب۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، یوں جتنی بھی خوشحالی گھر میں ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی، بلکہ ہر مہینے الٹا کرائے کی پریشانی تھی۔ اوپر سے گھر بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ ہم جب بھی مکان تبدیل کرنے کی سوچتے تو ایڈوانس اتنا مانگتے کہ ہم اسی مکان میں رہنے پر مجبور ہو جاتے۔ نہ جانے کب ہمارے گھر کے حالات بدلتے، لیکن ابا نے دکان کا کام چھوڑ دیا تھا، تو میں نے بھی مکمل طور پر اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھانا شروع کی۔ لیکن اس رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کس قدر خوبصورت تھی، گہری سبز آنکھیں۔ اگلے دن اس راستے سے گزر کر میں اپنی دکان پر جا رہا تھا جب میں نے پولیس کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی کھڑے تھے، وہ نہ جانے کس بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا کہ معاملے کا پتہ کروں کہ آخر کیا ہو گیا ہے، جو پولیس صبح صبح اس راستے پر موجود ہے۔ لیکن جو اس آدمی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان جو ان کا رشتہ دار تھا وہ کل اسی راستے پر آیا تھا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ لوگوں کا خدشہ ہے کہ کسی نے اسے دھوکے سے اس جگہ پر بلا کر قتل وغیرہ کر دی ہے، اس لیے پولیس اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ لیکن مجھے کل رات والی بات اچھی طرح سے یاد تھی
कि पुलिस इस जगह खड़ी थी। अचानक हुई उसी तरफ नीचे मेरी नज़र पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर मुर्गी के पंजे बिखरे पड़े थे। मुझे याद आया कि उसी जगह पर तो वो लड़की खड़ी थी जो ना जाने आधी रात को क्या कर रही थी, और मुझे देखते ही ऐसे गायब हुई जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। मेरे हाथ पांव में सनसनाहट दौड़ गई। ऐसे लग रहा था जैसे उन दोनों चीज़ों का आपस में कोई गहरा ताल्लुक हो। ये सारा सामान तो उसने मेरी दुकान से ही खरीदा था, इसीलिए मैंने यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और जल्दी से अपनी दुकान पर आ गया। पूरा दिन मेरे जहन में यही बातें घूमती रही। आखिर वो लड़की कौन थी और इस जगह पर मुर्गी के पंजों और दिल के साथ क्या कर रही थी? कहीं उसका ताल्लुक ऐसे लोगों से तो नहीं था जो आमतौर पर जादू टूने के लिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन पूरे शहर में ये बात फैल गई थी कि सेठ फरीदुद्दीन का नौजवान बेटा न जाने कैसे गायब हो गया है। हाँ, उसे आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया था जिसकी आंखें गहरी सब्ज थी। लोग कह रहे थे कि उस लड़की ने इसे वहां पर बुलाया था, जिस वजह से वो वहां पर जाकर गायब हो गया और इसका कुछ अता पता नहीं मिल सका। साथ वाली दुकान पर काम करने वाला चचा मुझे ये सारी दास्तान बता रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उससे कहूँ कि ये लड़की कल मेरी ही दुकान पर आई थी जिसके बारे में वो बात कर रहे, लेकिन मैंने इस बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर पुलिस इस बात तक पहुंच गई तो वो मुझे भी तफ्तीश में शामिल कर लेगी, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। वैसे ही हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। फिर मैं मामूल के मुताबिक गोश्त फरोख्त करने लगा। आज फिर मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रात को मैं फारिग हुआ तो मेरी नज़र मुर्गी के पंजों पर पड़ी। मैंने सारी बाकियात उठाकर एक थैली में डाली और दिल में ख्याल आया कि इन्हें मैं किसी ऐसी जगह पर फेंक देता हूँ जहाँ बिल्लियाँ या कुत्ते वगैरह खाकर अपना पेट भर लें। यही सोचकर मैं उस कचरे के ढेर की तरफ चला आया, लेकिन जैसे ही मैंने ये थैला फेंका तो अचानक ही कचरे के ढेर में से एक हलचल सी मची। मैंने पलटकर देखा और मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। मेरा फेंका गया थैला लम्हे भर में गायब हो गया। उसका नामो निशान भी नहीं मिला, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई कुत्ता ना ही कोई बिल्ली जो झपट कर उसे अपने साथ ले जाती। मैं अपने कदमों पर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा, मुंतज़िर निगाहों से देखता रहा कि शायद कोई मुझे नजर आ जाए, लेकिन फिर सर झटक कर वापस घर की तरफ जाने लगा। आज फिर मैं उस जगह पर पहुंचा ही था कि मुझे उसी दरख्त के पीछे लड़की खड़ी दिखाई दी, लेकिन मैं हैरान रह गया। वो झांक झांक कर मुझे भी देख रही थी। उसकी सब्ज आंखें रात के अंधेरे में खूब चमक रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी मैं तेजी से उसके सामने गया तो वो अचानक पूरी तरह से मेरे सामने आ गई, जबकि मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था, क्योंकि इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी गहरी सब्ज आंखें मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बहुत हसीन लग रही थी, जैसे उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया हो। फिर मैंने उन सारी बातों को नज़रअंदाज किया और ज़रा गुस्से वाले लहजे में उससे कहने लगा, तुम ही हो ना जिसने उस नौजवान को गायब किया है? सच सच बताओ, तुम किस इरादे से यहाँ पर आती हो? ये सुनकर वो मुस्कुराई, जैसे उसकी मुस्कुराहट में भी एक जादू था। फिर वो कहने लगी, मेरा भला इस नौजवान से क्या ताल्लुक है? मैं तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर खड़ी होती हूँ। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। एकदम से मुझे वो बहुत मासूम लगी। फिर मैं दिलचस्पी से उससे पूछने लगा, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार क्यों करती हो? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं तुमसे गोश्त खरीदना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं गरीब लड़की हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर अपनी माँ के साथ रहती हूँ, एक झोंपड़ी में। वहीं पर हम दोनों माँ बेटी तुम्हारी दुकान से खरीदे हुए पंजे और कलेजे वगैरह खरीद कर गुजारा कर लेते हैं। बस यही हमारी ज़िंदगी का आसरा है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने वो सारा सामान आज कचरे के ढेर पर फेंक दिया। काश मैं इस लड़की के लिए लेकर आता। एकदम से मैं भूल गया था कि इसने क्या क्या किया था, क्या नहीं। मुझे ये लड़की बहुत मासूम लग रही थी। जैसा मैंने इसके बारे में गुमान किया था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल में इसके खिलाफ खामखा शक पैदा हो गया था।
मैं नरमी से उससे कहने लगा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे कह दिया करो या फिर मेरी दुकान पर आ जाया करो। ये सुनकर वो डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं उस दुकान पर नहीं आ सकती। उस दिन भी मैं मजबूरी में आ गई थी। लेकिन तुम्हें क्या बताऊं कि जब उस दिन मैं तुम्हारी दुकान पर गई तो वहां से एक ओबाश नौजवान मेरा पीछा करने लग गया। बड़ी मुश्किल से उससे जान बचाकर मैं यहाँ आकर छुप गई। फिर जब तुमने आवाज़ दी तो मैं समझी कि शायद वही ओबाश नौजवान है, तभी तो मैं जल्दी से यहाँ भाग गई। फिर मैं उससे कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर देकर जाया करूँगा। अचानक ही मेरे दिल में उसके लिए बहुत सारी मोहब्बत पैदा हो गई, शायद उसकी खूबसूरती और गहरी सब्ज आँखों की वजह से। फिर मैं काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहा। उसने मुझे यही बताया कि वो एक यतीम और गरीब लड़की है जो यहाँ से थोड़ी दूर अपनी माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहती है। दोनों माँ बेटी का बस यही आसरा है। पहले उसकी माँ घर घर मांगती थी, लेकिन अब वो बहुत बीमार है और वो लड़की मांग कर गुजारा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी खूबसूरती उसके लिए बेपनाह रुकावट है। मुझे बस यही उसके बारे में पता चल सका था। न जाने क्यों उससे मुलाकात करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था। मैं जल्दी से घर आ गया, लेकिन घर आया तो अम्मा उसी सेठ फरीद के बेटे के बारे में बातें कर रही थी। अरे वो इतना अमीर है, पल भर में बेटे के बारे में पता लगा ले। लेकिन पुलिस खुद दिन रात कोशिश कर रही है मगर उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। मैं बेजारी से कहने लगा, लेकिन आखिर ये सेठ करता क्या है? इसका तो करोड़ों का बिजनेस है। अम्मा कहने लगी, अरे उसने तो अपनी जेवरात की दुकान बना रखी है। उसकी दुकान पर सोने चांदी के जेवर नहीं बल्कि हीरों के जेवर होते हैं और शहर के अमीर अमीर लोग उसकी दुकान पर आते हैं। हमारी तो उसकी दुकान में झांकने की भी औकात नहीं। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गया। उस सेठ की शोहरत दूर दूर तक थी और इतने अमीर बाप का बेटा खो जाना और पुलिस का उसे तलाश न कर सकना हैरत में मुब्तला कर रहा था। शहर में मौजूद सब लोगों की जुबान पर इसी बात के चर्चे थे कि उस नौजवान की दोस्ती एक सब्ज आंखों वाली लड़की के साथ थी। उसको गायब करने में उसी का हाथ है। लोग सब्ज आंखों वाली लड़की के बारे में बात करते और मेरा ध्यान उसी लड़की की तरफ चला जाता। फिर मेरे दिल में ख्याल आता कि कहाँ वो गरीब लड़की और कहाँ वो सेठ का बेटा। उन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं। यही सोचकर मैं अपने आप को मुतमईन कर लेता। दूसरे दिन मैंने थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान और गोश्त वगैरह लिया और उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि मैंने उस जगह पर पुलिस का पहरा देखा। पुलिस वाले 2 लोगों ने मुझे वहाँ खड़े देख लिया। तभी वो दोनों मेरे पास आकर कहने लगे, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैं दिल में सोचने लगा कि ये मोहब्बत भी कहाँ कहाँ ख्वार करवा देती है। जल्दी से पुलिस वालों से कहने लगा, नहीं साहब जी, मैं तो घर जा रहा था। असल में 2-3 दिन से मैं पुलिस वालों को यहाँ आते जाते देख रहा हूँ, इसीलिए गया था। लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या मामला और मुझे इस बात पर तशवीश भी है। मैं भी रोज़ाना इस रास्ते से गुजरता हूँ। दिल घबराता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसा सेठ के बेटे के साथ हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाला कहने लगा, नहीं नहीं, हम यहाँ पर 2-3 दिन से पहरा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उल्टा उन्होंने मुझे तसल्ली देकर जाने का कह दिया, जबकि मैं शदीद मायूसी की कैफियत में था। फिर मैंने सारा सामान वहीं एक दरख्त के पीछे मौजूद झाड़ियों में छुपा दिया। मेरा इरादा था कि यहाँ पर रात गए आऊँगा। मैं जानता था कि रात को यहाँ पुलिस वाले मौजूद नहीं होंगे। यही सोचकर मैं घर चला आया। जल्दी से खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे मैं फ़ौरन ही उठा और वहाँ पहुँच गया। यह जगह हमारे घर से चंद कदम के फासले पर थी। मैंने अपना सारा सामान उठाया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो सारा सामान गायब था। अब मुझे शदीद मायूसी हुई। मैं क्या लेकर जाऊं और वो लड़की बेचारी क्या पता मेरा इंतज़ार कर रही हो। उससे ना मिलने की उम्मीद ने मुझे मायूस कर दिया। मैं फिर ऐसे ही खाली हाथ घर आ गया। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही उस रास्ते से गुजरने लगा तो मुझे उसकी चंचल हंसी की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गया। वो काले रंग के कपड़ों में मलबूस गहरी सब्ज आंखें लिए
मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं हैरान होकर कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि तुम नाराज़ होगी, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम जो सामान लेकर आए थे वो मैंने उठा लिया था, इसलिए काफ़ी ज़रूरतें पूरी हो गई थी। अब मेरा दिल मुतमईन है कि कोई है जो अम्मा के बाद मेरा ख्याल रख सकता है। उसके लहजे में लगावट थी और मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि पुलिस वालों का यहाँ पर पहरा होता है, फिर भी तुम यहाँ पर घूमती फिरती हो। तुम्हें मालूम है कि पुलिस वालों को एक सब्ज आंखों वाली लड़की की तलाश है। तुम बच के रहना, क्योंकि तुम्हारी आंखें भी गहरी सब्ज हैं। ये सुनकर वो बड़े नाज से कहने लगी, पुलिस वाले मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते, मैं उनके हाथ कभी नहीं आ सकती। उसके लहजे में बहुत फख्र था। मैं हैरान होकर कहने लगा, तो क्या उस नौजवान को गायब करने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है? मेरे लहजे में शक था तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं भला इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ। दरअसल मैं यहाँ इस जंगल में रहने की आदी हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है, इसलिए कोई मेरा सुराग नहीं लगा सकता। मुझे उसका लहजा बहुत पुरस्कार लग रहा था। ये सुनकर मैं भी मुतमईन हो गया और फिर उससे दुनिया जहान की बातें करने लगा। उससे मिलने की तड़प पूरा दिन मेरा दिल बेचैन किए रखती। अब तो मैं काम भी खुशी खुशी करता, मुस्कुराता गुनगुनाता रहता। अम्मी और छोटी बहनें भी मुझे देखकर हैरान थी। सब पूछते कि मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता था कि एक खूबसूरत गहरी सब्ज आंखों वाली लड़की, उससे मुझे मोहब्बत हो गई है और मैं जब भी उससे मिलता हूँ तो मेरा दिल 7वें आसमान पर होता है। लेकिन मैं अभी भी उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। अगले ही दिन जैसे ही मैं उस रास्ते से गुजरने लगा तो मुझे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ अजीब बोलिए वाले लोग खड़े थे, उनके साथ पुलिस वाले भी थे और 2-3 अमीर लोग भी, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़क के एक तरफ खड़ी दिखाई दे रही थी। मैं लोगों से पूछने लगा कि यहाँ इतना रश क्यों है, तो एक आदमी कहने लगा, अरे भाई बच के रहना, कल रात पुलिस वाले यहाँ पर पहरा दे रहे थे। एक पुलिस वाले ने अपनी आंखों से एक मोटी नागिन को देखा, इतनी बड़ी नागिन जो किसी को पूरा निगल सकती है। बस उसी की दहशत है सब लोगों पर, और यही वजह है कि उसे ढूंढने की वजह से इस कदर रश है। सपेरों को भी बुलाया गया है और उन लोगों को भी जो उसकी तलाश में जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। बड़ी खतरनाक नागिन थी। उस आदमी की बातें तो मुझ पर भी दहशत तारी करती। मैं दिल में सोचने लगा कि वो भी तो यहाँ से चंद कदम के फासले पर रहती है। अगर नागिन ने उसकी या उसकी माँ को कोई नुकसान पहुँचाया तो मुझे उसे इस नागिन के बारे में बताना होगा। मैं दिल में अजीब सी उलझन महसूस कर रहा था। दिल चाह रहा था कि उड़ता हुआ जाऊं और उसके पास पहुंचूं, लेकिन पुलिस का पहरा सख्त था। वो किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे थे। फिर जब मैंने उस जगह पर नागिन के निशानात देखे तो हैरान रह गया। वो दरख्त के ऊपर जाते हुए निशान साफ मुझे भी दिखाई दे रहे थे। यकीनन पुलिस वालों ने भी झूठ नहीं कहा था। दूसरी तरफ एक आदमी ने मुझे बताया कि हो सकता है कि उसी नागिन ने सेठ फरीद के बेटे को भी ढस कर मार दिया हो। उसकी गुमशुदगी को पूरे 2 हफ्ते हो गए, लेकिन ऐसे में किसी का जिंदा बच जाना मौत से कम नहीं। यकीनन उसका नौजवान बेटा मर चुका होगा। यह खबर यकीनन सेठ फरीद के लिए बहुत बड़ा सानिया होगी, लेकिन मुझे सिर्फ फिक्र अपनी मोहब्बत की थी, क्योंकि उन 10-15 दिन में मैं उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगा था। जब तक उसे देख न लेता मुझे सुकून नहीं मिलता। अब उस जगह पर मैं उसे कहाँ तलाश करूं? घर आकर मैंने बेचैनी से खाना खाया और खाते ही बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। मैं जैसे ही गहरी नींद सोया तो मुझे अजीब सा ख्वाब नजर आया, जैसे मैं एक जंगल में भटक रहा हूँ, लेकिन वो सफ़ेद लिबास पहने मेरे साथ ही है, जिसकी लंबी गहरी चोटी पुश्त पर नागिन की तरह बल खा रही है। वो अपनी सब्ज आंखों से मुझे देखती मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन अचानक ही हम दोनों के पीछे एक गहरा काले रंग का नाग लग गया। हम दोनों इतनी तेजी से भाग गए कि भागते भागते अचानक वो गिर गई। लेकिन जहाँ वो गिरी वहाँ पर एक गहरा कुआं था। वो उसमें गिरती चली गई और मैं उसे आवाज़ें दे रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। अचानक उस नाग ने भी कुएं में छलांग लगा दी।
मैं उसे बचाने के लिए तड़प रहा हूँ कि किसी तरह कुएं के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। अब मैं फूट फूट कर रो रहा था। तभी मैं सिसकियाँ लेने लगा, लेकिन अचानक ही अम्मा ने पानी के छींटे मेरे मुंह पर मारे। हैरान होकर कहने लगी, क्या हुआ अदनान बेटे, खैरियत तो है? तुम नींद में रो रहे हो? अम्मा ने बड़ी परेशान नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मैं एकदम से चौंक कर उठा। ये मैंने कैसा अजीब सा ख्वाब देखा है? यकीनन उसकी ज़िंदगी खतरे में है, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं एकदम बिस्तर से उठा और पागलों की तरह घर से जाने लगा, लेकिन अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया और कहने लगी, तुम नींद में हो, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मेरे अकलौते बेटे हो, अब तो शहर में उस नागन की दहशत फैली है। तुम्हारे अब्बू तो कह रहे थे कि 2-3 दिन तक दुकान भी ना खोलो। अम्मा मुझे बाहर जाने से मना कर रही थी। जैसे ही मुझे होश आया, फिर ये सोच कर रुक गया कि दिन के वक्त तो वो मेरी दुकान पर आती भी नहीं थी और ना ही उस रास्ते पर नज़र आती थी। आज रात को ही मुझे उससे मुलाकात करनी होगी। फिर दूसरे दिन जब मैं उस रास्ते से गुजरने लगा, मेरी खुशनसीबी थी कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मेरी बेकरार नज़रें उसी को तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही दरख्त के पीछे से निकलकर वो मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में बेतहाशा उदासी थी, जैसे वो कुछ परेशान सी हो। फिर मुझे देखते हुए वो कहने लगी, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे अदनान, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? दरअसल पुलिस वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वही लड़की हूँ जिसने उस सेठ के बेटे को कत्ल किया है। तुम बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? उसकी सब्ज मासूम आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। वो आंसू बहाते हुए बहुत मजलूम लग रही थी। मेरा दिल बेचैन हो गया और मैं उससे कहने लगा कि पुलिस वालों का ख्याल गलत है, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मेरे मुंह से ये सुनकर वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, बड़ी मुश्किल से तुमसे मुलाकात करने आई हूँ। दरअसल तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपना ठिकाना तब्दील करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। बस आज की रात मेरे पास है, ऐसा न हो कि कल पुलिस वाले मुझे तलाश कर लें। उसके बाद हमेशा के लिए मेरा ठिकाना जेल बन जाए। मैं फ़ौरन ही उसकी मदद को तैयार था। उससे कहने लगा कि जैसे ही तुम्हें मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से भी मिलवाऊंगी। अब मैं खुशी खुशी उसके पीछे था। आज मुझे उसके घर का पता लगने वाला था। फिर वो मुझे ना जाने कहाँ लेकर जाने लगी। अंदर ही अंदर जंगल, बियाबान, झाड़ियों और दरख्तों के पीछे छुपा उसका ठिकाना मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं कुछ बेचैन सा होकर उससे पूछने लगा, कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तक आया क्यों नहीं? वो अचानक पलटी और अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्यों, अभी से ही डर गए हो? देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं भी तो यहाँ पर रहती हूँ। तुमसे मिलने की आरज़ू लिए मैं उस सड़क तक आती हूँ। इतनी दूर से क्या तुम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते? ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। फिर खुशी खुशी दोबारा उसके पीछे जाने लगा, लेकिन अब वो मुझे एक ऐसी जगह पर ले आई जहाँ पर आबादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि एक खंडर सी हवेली थी, हजारों साल पुरानी, जिसकी 1-2 दीवारें ही सही सलामत थी, या फिर एक टूटा फूटा सा कमरा। उस जगह पर तो खौफ के मारे कोई आकर झांकता भी नहीं था। फिर ये यहाँ कैसे रहती है? मेरे दिल में अजीब से खदशात पैदा होने लगे। अचानक ही मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई तो मैं डर कर एक तरफ हो गया। मुझे यूं डरता देखकर वो ज़ोर से हंसी। मुझे उसकी हंसी बहुत खौफनाक लगी। फिर वो कहने लगी, क्या हुआ, डर गए क्या? क्या मेरा ठिकाना नहीं देखना चाहते? मैं तो यहीं पर रहती हूँ, इस हवेली में। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। अचानक ही वो मेरे करीब आई। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग गया। फिर वो मुझे उसी कमरे में ले गई जहाँ पर उजड़ा हुआ कमरा और उसमें रखा हजारों साल पुराना सामान देखकर मुझे शदीद अबकाइयाँ आ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ मेरी आंखों में जब पैदा हुआ जब मैंने कुर्सी पर मौजूद बैठे एक शख्स को बेहोश हालत में देखा। लेकिन उस शख्स को तो मैं पहचान सकता था। शहर में लगी जगह जगह पर उसकी गुमशुदगी की तस्वीरें और बाद में हलाकत की खबरों ने पूरे शहर में हलचल मचा रखी थी, और ये बेहोश हालत में उस जगह पर मौजूद है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी मोहब्बत इस कदर बदनुमा और झूठी हो सकती है। मैं बेयकीनी से सब्ज आंखों वाली खूबसूरत हसीना को देखने लगा, जिसने मुझे सही से बेवकूफ़ बनाया था, जो मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आई थी। मेरे चेहरे पर बदहवासी और खौफ देखकर वो कहने लगी, क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो? ये सब मैंने ही किया है। ये नौजवान जिसे तुम देख रहे हो, ये उस कातिल का बेटा है जिसने मेरा सुहाग उजाड़ा। मैं ही वो सब्ज आंखों वाली लड़की हूँ जिसने इसे अपनी मोहब्बत के जाल में पागल बनाया और अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। मैं कैसे उस पर अंधा एतबार कर सकता था? अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने उस जुर्म का अजाब मुझ पर डालने वाली है। यकीनन मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और 2 कदम चलती मेरे करीब आई और कहने लगी, ये सब मैंने बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि इसका बाप एक कातिल है। उसने मेरा सुहाग उजाड़ा, उसने हमेशा के लिए मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा कर दी। यही वजह है कि मैं उससे बदला लेने पर मजबूर हुई हूँ। मैं हैरत से उससे कहने लगा, लेकिन तुम हो कौन? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुम्हारा पूरा शहर जानता है, और इस नौजवान के बारे में भी। लेकिन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक ये मरा नहीं बल्कि जिंदा है। मैं चाहूँ तो इसे पल भर में मार कर इसकी जान ले लूँ, लेकिन अभी मुझे एक बहुत कीमती चीज़ इसके बाप से हासिल करनी है, और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। वो मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे हैरान कर रही थी। कैसी मदद और कैसा बदला? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। वो लम्हे भर को खामोश हुई, फिर कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारे शहर में आजकल किसकी दहशत है? मैं सोचते हुए कहने लगा, हाँ, दरअसल लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से एक मोटी नागिन देखी है। तब से ही लोग खौफ के मारे पागल हुए पड़े हैं। ये सुनकर वो जोर से हंसी और मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, तो ये समझ लो कि वो नागिन कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो नागिन सब्ज आंखों वाली जो हर किस्म का रूप बदल कर किसी के भी सामने आ सकती है, जैसे तुम्हारे सामने आई और जैसे इस नौजवान को मोहब्बत में पागल किया। मैं अपने बदले की आग में कुछ भी कर सकती हूँ। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक नागिन थी, इतने दिन से मुझे बेवकूफ़ बनाकर एक हसीना के रूप में आ रही थी। अब भला उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पुलिस पूरे शहर में इस कातिल को तलाश कर रही थी जो सेठ फरीद के बेटे का था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि यह नौजवान जिंदा है। आखिर उसने इसके साथ ऐसा क्या किया है? मैं सब कुछ जानना चाहता था। मुझे यूँ खामोश देखकर वो कहने लगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसके बाप ने ऐसा क्या किया जो तुम अपने जहन में सोच रहे हो, वो सब जान सकती हो। दरअसल सालों पुरानी बात है, जब मैं और मेरा शोहर उस हवेली में रहते थे। वो हवेली बिल्कुल बंद पड़ी थी क्योंकि वहाँ पर हिंदू आबाद थे। लेकिन जैसे ही हिंदू वो हवेली छोड़ कर गए, हम सारे नाग नागिन ने इसे अपना ठिकाना बनाया। मैं अपने जोड़ीदार नाग के साथ वहाँ बहुत खुश थी। मेरी दुनिया उस पर शुरू थी और उसी पर ख़त्म। अभी हम दोनों 100 साल के नहीं थे। हमें जल्द ताकत मिलने वाली थी। उसे पाने के लिए बड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन मैं क्या जानती थी कि उससे पहले ही उजड़ जाऊंगी। मेरा सुहाग, मेरा साथी मुझसे छीन लिया जाएगा। वो रात बड़ी भयानक रात थी जब अचानक इंसानों ने हमला किया, क्योंकि वो नाग नागिन की तलाश में इस हवेली में आए थे। बहुत लालची थे जो हीरो की तलाश करते फिर रहे थे। इस हवेली में रखा हुआ हिंदुओं का वो खजाना जो उन्होंने न जाने कहाँ दफन किया था, वो उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन सब जानते थे कि इसमें नागों का बसेरा है, इसलिए कोई भी यहाँ पर कदम नहीं रखता। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मेरा साथी नाग हवेली में मौजूद नहीं था। न जाने कहाँ है वो, जबकि मैं एक महफूज जगह पर छुप गई ताकि उन शैतान नुमा इंसानों की नज़र मुझ पर न पड़े। वो खजाना ढूंढने में नाकाम रहे, क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी एक दूसरे बड़े नाग के ऊपर थी, जिसने पल भर में खजाने को इंसानों की नज़रों से ओझल कर दिया। तभी एक शख्स गुस्से में कहने लगा, वो खजाना तो मिलने से रहा, क्यों ना हम किसी नाग को मारकर उसकी नागमनी हासिल कर लेते हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों में शदीद दहशत की चमक थी। लेकिन दूसरा आदमी कहने लगा, नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहते। नाग को मारना सख्त अजाब है, अपने आप को गुनाह में मुब्तला करना किसी तौर पर जायज़ नहीं समझता। लेकिन दूसरा शख्स, जिसकी आंखें लालच से अंधी हो चुकी थी, वो उकसाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तभी मैंने उस शख्स की घटिया बातों पर उसे देखा। उसका चेहरा मेरी आंखों में समा गया। लेकिन तभी मेरी जान निकल गई
जब मेरे सामने से मेरा साथी नाग मुझे आता दिखाई दिया। उसे इस मामले की कोई खबर नहीं थी। वो नहीं जानता था कि उस रात हवेली पर चंद शैतान नुमा इंसानों ने हमला कर दिया है, वो भी खजाने के लालच में। उसी बेखबरी में वो मारा गया और जान से मार दिया गया। उस आदमी ने जो दौलत के लालच में अंधा हो गया था, उसने मेरी नागमणि भी अपने पास रखी और वहां से चलता बना। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं अपने साथी के बगैर एक खूबसूरत जिंदगी से महरूम हो गई, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसके लिए मुझे अभी वक्त का इंतज़ार करना था, पूरे 20 साल का इंतज़ार, तभी अपने मकसद में कामयाब हो पाती। मैं अपने साथी नाग की नागमणि हर कीमत हासिल करना चाहती थी, और वो उसी सेठ के पास है जिसका ये बेटा है। आज मैंने जब इसकी औलाद को उससे जुदा किया तो उसके दिल पर क़यामत गुजरी। ऐसी ही क़यामत मेरे दिल पर भी गुजरी थी जब उसने मेरे साथी जोड़े को मार डाला। अब मैं उसके बेटे को भी मार डालूंगी। उसका लहजा बड़ा गजबनाक था। मैं जानता था कि वो एक ताकतवर नागिन बन चुकी है और गुस्से में बल खा रही है, कुछ भी कर सकती है। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, इसमें इस नौजवान का कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए इसे नुकसान न पहुंचाना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। वो सेठ तुम्हारी नागमणि जरूर वापस करेगा। उसने तुम्हारा सुहाग उजाड़ कर बहुत बड़ा जुर्म किया है, और इस जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। लेकिन अपना दिल बड़ा करो और इस मासूम नौजवान को छोड़ दो। उसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज़ नहीं। जब तक मेरा मकसद हासिल नहीं हो जाता इसे नहीं छोड़ूंगी, और इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी हर किस्म की मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन वो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँच जाएगी। उस नागिन की दास्तान सुनकर सच में मेरे दिल से उसके खिलाफ गम और गुस्सा मिट चुका था। उसने जो कुछ किया वो बदले की आग में किया। न जाने हम इंसान दौलत की हवस और लालच में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि किसी का इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं कि उसका खमियाजा हमारी अगली नस्ल को भुगतना पड़ता है। और ऐसा ही सेठ फरीद ने किया। अब मैं उससे वादा करके जा रहा था कि उसकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन वो उस नौजवान को नुकसान नहीं पहुँचाए। मैं हैरान भी हुआ कि उसने उस पुरानी हवेली में अभी तक सही सलामत उसे रखा था। जब मैंने यही बात पूछी तो वो कहने लगी कि यही वो हवेली है जहाँ पर हम 20 साल पहले रहते थे, लेकिन आज ये खंडर बन चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। फिर दूसरे दिन मैं सेठ फरीद के घर पहुँच गया। मैं उसके बेटे का दोस्त बनकर उनके घर गया। मैंने देखा वो एक आलीशान बंगला था जहाँ पर वो रहते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अयान अली जो उसके बेटे का नाम था, उसका इकलौता बेटा था। उसी की वजह से उस घर में शोक की कैफियत थी। मालो दौलत, शान और शौकत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन अब वो सारे सख्त सदमे का शिकार थे, क्योंकि सेठ ये उम्मीद खो चुका था कि उसका बेटा जिंदा होगा। सब यही कह रहे थे कि उसकी गुमशुदगी को काफ़ी दिन गुजर गए, इसलिए वो मर चुका होगा। लेकिन जब मैंने उन्हें तसल्ली दी कि हो सकता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, आपका बेटा अभी भी जिंदा हो, और मेरी बात सुनकर चौंक गई। फिर मायूस लहजे में कहने लगे, बेटा, तुम्हारे अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि वो जिंदा होगा। सब कह रहे हैं कि हमें सब्र करना चाहिए। वो मेरा इकलौता बेटा था। उसके चेहरे में गम की कैफियत थी। 20 साल पहले जो उसने इतना बड़ा कारनामा किया था वो भूल चुका था। मुझे एहसास दिलाना चाहिए कि उसने कैसी गलती की थी जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ। यही सोचकर मैं मौके की तलाश में था। फिर मैं उसके घर से लौट आया, लेकिन मैं उसकी दुकान पर पहुंच गया जहां पर मुलाजिम उसका बड़ी आलीशान दुकान को संभाल रहा था, जो मार्केट की सबसे मशहूर व मारूफ दुकान थी। मैं जानता था कि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, चाहे तो दुनिया के हज़ारों खजाने खरीद लें, लेकिन अब वो बेटे की वजह से किस कदर मजबूर और बेबस हो गया है। तभी एक रात जब वो अचानक दुकान से घर की तरफ जा रहा था, मैंने उसका रास्ता रोका। वो मुझे पहचान गया और हैरत से कहने लगा, तुम वही लड़की हो ना जो मुझसे मिलने आए थे, मेरे बेटे के दोस्त। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं सेठ साहब, मैं आपके बेटे का दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं, ना ही वो मुझे जानता है। मेरा आपके पास आने का मकसद कुछ और था, जिसे सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। वो हैरत से कहने लगा, कौन सा मकसद, मुझे बताओ। मैं कहने लगा, बात ज़रा लंबी है, इसलिए मैं आपको कहीं और साथ लेकर जाना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे अपनी कार में बैठने को कहा। अब मुझे घबराहट हो रही थी। इसमें मेरी जान को खतरा भी था, लेकिन उस वक्त उसके बेटे की जान बचानी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैं उसे खुफिया जगह पर ले आया और कहने लगा, सेठ साहब, मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उसे दिल थाम कर सुनिएगा।
दरअसल आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपका बेटा सही सलामत है। ये सुनकर वो हैरत से उछल पड़ा और कहने लगा, तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? क्या तुम कोई ब्लैकमेलर तो नहीं हो? मैंने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, नहीं, मेरा आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं उसे हादसाती तौर पर देख चुका हूँ। लेकिन इस वक्त वो जिसके पास है उससे उसकी जान को बहुत खतरा है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है। ये सुनकर तो सेठ फरीद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हकीकत पर मबनी है। मैं उससे कहने लगा, नागिन उसकी रखवाली कर रही है, लेकिन उसने अभी तक उसे जान से नहीं मारा। लेकिन अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जान से मारने में एक लम्हा नहीं लगाएगी। कौन सी बात? और आखिर उसने मेरे बेटे को अपने पास क्यों रखा है? तुम झूठ कह रहे हो। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगा तो मैं उसे समझाते हुए कहने लगा, इस वक्त ये बातें ठीक नहीं हैं। ये बातें आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो नागिन अपनी नागमणि लेने वापस आई है। उसे अगर वो मिल गई तो आपके बेटे को छोड़ देगी, वरना वो अपना बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि 20 साल पहले आपने उसके सुहाग को उजाड़ा था, उसके साथ ही नाग को मारकर। ये सुनकर वो दहशतज़दा हो गया, फिर सर झुकाकर कहने लगा, मैं अभी तक उस बात पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जब मैंने उस नाग को मारा था तब से ही मुझे लोगों ने डराना शुरू कर दिया था कि अब वो नागिन तुमसे बदला ज़रूर लेगी। कई साल तक मैं इस बात से डरता रहा, लेकिन फिर आखिर मैंने इस बात को अपने जहन से निकाल दिया और अपना कारोबार शुरू कर दिया। शायद मेरा लालच मुझे लेकर डूबा। नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटे की जान अपनी सारी दौलत से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा है। खुदा के लिए उस नागिन से कहो मेरे बेटे को माफ़ कर दे, बदले में मेरी सारी दौलत ले ले। मैं सेठ से कहने लगा, वो आपकी दौलत का कुछ नहीं करेगी, बस साथ ही नाग की निशानी हासिल करना चाहती है। ये शुक्र है कि वो बदला लेने आपके घर नहीं आई, वरना किसी सूरत भी घुस जाती तो बगैर बदला लिए वापस ना जाती। सेठ फरीद कहने लगा, वो नागमणि आज भी मेरे पास हिफाजत से रखी है। मैंने उसे ना ही फ़रोख्त किया और ना ही उससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे बाप दादा का कारोबार था, जेवरात का, और इसी से मैंने अपने कारोबार में इजाफा किया। मैं आज ही वो उसके हवाले कर दूंगा। यह सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। इसका मतलब कि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहता था, और अब बहुत आसान हो गया था। दूसरे दिन सेठ मेरे साथ जा रहा था, वो भी अपने बेटे के पास, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली थी जिसमें वो नागमणि हिफाजत से मौजूद थी। मैंने उसे मखसूस जगह पर रखा और जैसे ही सेठ ने अपने बेटे को देखा, उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसकी आंखों से खुशी आंसू बनकर टपक रही थी। उसने जैसे ही बेटे को होश में लाने की कोशिश की, थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वो अपने बाप से कहने लगा कि मुझे एक लड़की ने यहाँ रखा है जिसकी आंखें सब्ज हैं। उसे देखते ही मैं उसके इश्क में दीवाना हो गया था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। सेठ फरीद के बेटे की गुफ्तगू सुनकर मुझे बेख्तियार हंसी आई। मैं उसे कैसे बताता कि ऐसे ही उसकी तरह मैं भी उसके इश्क में मुब्तला हो गया था, और वो सब्ज आंखों वाली कोई लड़की नहीं बल्कि नागिन है, जिसने अपना बदला लेने के लिए उसको यरगमाल बनाया था। फिर वो दोनों बाप बेटे खुशी खुशी वहाँ से चले गए, क्योंकि उसे अपने बेटे की जान की बहुत परवाह थी। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुझे मायूसी हुई। जैसे ही जाने लगा तो अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने देखा वो नागिन मेरे पीछे ही खड़ी थी, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उस नागमणि को मोहब्बत से सीने से लगाकर खड़ी थी। मैं एहसास कर सकता था कि उसकी निशानी उसके लिए क्या अहमियत रखती थी। तभी मैं उससे एक बात पूछने लगा कि उसने सेठ से बदला क्यों नहीं लिया और उसके बेटे को अपने पास कैद करके क्यों रखा। तो वो कहने लगी कि मेरी फितरत ये नहीं कि मैं किसी मजलूम को नुकसान पहुंचाऊं। हाँ, लेकिन मैं ये जानती थी कि वो सेठ अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी खातिर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने उसके बेटे को चारा बनाकर इस्तेमाल किया, और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज मैं वापस अपनी दुनिया में जा रही हूँ, क्योंकि लोग मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कई लोग मुझे मारकर मेरी नागमणि हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं 100 साल पुरानी नागिन हूँ। कोई भी मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं रंग बदलने में और भेस बदलने में माहिर हूँ। उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। मुझे भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा
تو اچانک اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور پھر کہنے لگی، تم جانتے ہو نا، میں نے تمہیں جب اپنی کہانی سنائی تھی تو تمہیں اس خزانے کے بارے میں بھی بتایا تھا جو کہ ہزاروں سال سے یہاں پر دفن تھا، جب اس حویلی میں ہندو آباد ہوا کرتے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج بھی وہ خزانہ یہیں پر موجود ہے اور مجھے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایک ناگن بن کر میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے خزانے کے دفن ہونے کے بارے میں جس مقام کا بتایا ہے وہ آج بھی یہاں پر ہی موجود ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کی تلاش شروع کی تو وہ مجھے مل گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں مجھ جیسے غریب کسائی کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ میں اب خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا تھا جہاں پر سبھی میرے انتظار میں ابھی تک جاگ رہے تھے، لیکن جب میں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ آج خدا نے ہماری قسمت بدل دی ہے تو کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ سچ میں میں نے بنا کسی لالچ کی اس ناگن کی مدد کی تھی۔ میں کیا جانتا تھا کہ وہ جاتے جاتے مجھے مالا مال کر کے جائے گی۔ میرے دل سے اس کے لیے بہت سی دعائیں نکل رہی تھی اور شہر کے لوگ آج بھی اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو تلاش کر رہے تھے جس نے مجھ سمیت کئی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔